Hey guys, what's up? My name is Sadaf Ashmin. Welcome back to this brand new video. So in this particular video, इस वीडियो को बनाने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया. क्यों? क्योंकि ये प्रोजेक्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. पहला वाला और दूसरा वाला डॉग ईयर्स, और दूसरा क्या हम लोगों ने बनाया था, एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया था जिसमें हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली जो टेम्परेचर्स था उसको हम लोग चेंज कर रहे थे. बट इस वीडियो में इट्स काइंड ऑफ डिफरेंट. बेसिकली 8 बॉल नाम का एक गेम होता है. ऐसा दिखता है. एंड रुक जाओ, मेरे को ना इसका गूगल इमेजेस दिखा दो एक सेकंड. क्यूरियस, व्हाट द फक इज दिस? माय माउस, व्हाट द फक? Look at my mouse. Look at it. It got broke. Literally got broke. Bro, हम राइट क्लिक कैसे दाबेंगे अब? I need some time. यार, so I've just fixed it somehow. Let's see. यार पूरा वीडियो का मूड खराब हो गया. So yeah, as I was saying, that this is a very where did I? Basically, it's a game. So I was just showing you इसका images. So this is how I've seen this, right? 8 ball pool, 8 ball magic pool. This you've seen, right? So yeah, that's it. So basically it was really hard for me to pick. I'll show you why. Oh god damn it. So yeah, so magic 8 ball. So you have learned the powerful tool in JavaScript, that is control flow. Before I was saying conditional flow, that is from up to down, right? Because that is not true. That was control flow. Better word is control flow. That is control flow. Now when code starts to read from top to bottom, that like if statement executes, then the else statement get executed, then up to down it reads. That's the control flow. It's a very powerful. In fact, it can be used to tell someone's fortune. Fortune means कि आपके भविष्य में क्या होने वाला है, स्वाहा, तो वो हो जाएगा. In the following project, we will build a magic 8 ball using the control flow. I think now, before calling it anything, let's give it a Google search and see the meaning of this. What is a magic 8 ball? What is a magic 8 ball? Magic 8 ball is a plastic sphere made to look like an oversized 8 ball that is used to tell fortune. Okay. Basically, it tells the fortune. Okay. Basically, it will tell a fortune. So the user will be able to. Basically, for that very reason, this when I started to write the codes, I was unable to write because like what the hell? My reaction was that throughout the video, throughout while making that. The user will be able to input a question, and then our program will just give a random output. Right, that's funny. If you get stuck during the project or would like to see an experienced developer work through it, click on get unstuck. So you can click get unstuck and straight away click on this video, and it will just open a video on your next tab, and you can see that. Basically, this was a video. It was a real struggle, to be honest. इसको बनाने में मेरी हालत ख़राब हो गई. मेरे को अनटिक करने दो सब कुछ. मैंने तो बना लिया आखिर, मेरे को समझ में आ गया, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था ये. I don't know why. Maybe the instructions were a little bit fucked up. Alright, so let's start. Okay, 0 completed. Are we ready? Alright. The first line of the program define a variable called username that is set to an empty string. So basically it is saying create a variable name using the let keyword, which should be user name name, and set it to an empty string. So this is basically an empty string, there are quotes without anything in it. Right, set. If the user wants, they can enter their name in between the quotation marks. So let's name it Ash. Right, Ash. Our username is Ash for now. Right, can we take this? Before taking, let's click on save. So it got saved. So okay. Below the variable, just below the variable on line number 2, create a ternary expression that coincides what to do if the user enters a name or not. If the user enters a name like Jane, use the string interpolation to log out hello Jane to the console. So basically, her string interpolation, that is
joining strings together. Basically in a string there should be a variable too. So basically they are saying create a create a ternary operator. You know what a ternary condition, I'll show you what. So wait, ternary expression in JavaScript. Let me just now let's give you like कि क्या दिखता कैसा है ternary expression. तो इससे तो समझ में नहीं आएगा क्योंकि क्या ही है इसमें, तो वेरिएबल से लिखा है, तो इसमें हाँ से शायद समझ में आ जाए. तो बेसिकली ना हम लोग को अपना वेरिएबल लिखना पड़ता है लेफ्ट हैंड साइड में. उसके बाद हम लोग को इसको इक्वेट करो. अगर आपको इसको कंडीशनल बनाना है स्पेसिफिकली तो उसको इक्वेट करो, उसके बाद क्वेश्चन मार्क का साइन दो. अगर जब ये वाला जो पूरा का पूरा हम लोग का एक कंडीशन है, इफ़ इट्स ट्रू, तो आप वो वाला लाइन लिख दो जो आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो. अगर ये पूरा का पूरा क्या हो, ट्रू हो, फिर यहाँ पे कोलोन का साइन दो और वहाँ पे वो वाला स्टेटमेंट लिखो एग्जीक्यूट हो जब ये वाला एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाए, ये वाला कंडीशनल फॉल्स हो जाए. हाँ ओके बड़ी ओके. टर्नरी एक्सप्रेशन JS लिखते हैं ना. जाबो स्क्रिप्ट. क्या आप लोगों को मज़ा आ रहा है? देखो कंडीशनल एक्सप्रेशन व्हेन ट्रू एंड एक्सप्रेशन व्हेन फॉल्स. क्लियर? देख स्टार्ट करते हैं. ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा था वीडियो क्योंकि इंटरेस्टिंग वीडियो. ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? सबसे पहले हम लोग अपना क्या लिखने वाले हैं? बिलो दिस वेरिएबल क्रिएट अ टर्नरी एक्सप्रेशन. राइट, तो बेसिकली हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा? यूज़र नेम. ठीक है, यूज़र नेम हम लोग का वेरिएबल है. ठीक है, क्या इसको कोई कंडीशनल क्रिएट करना है? स्ट्रिक्टली इक्वल टू ऐश और समथिंग? नहीं. अगर यूज़र नेम दिया जाए तो हम लोग को क्या चाहिए आउटपुट? हम लोग को चाहिए console.log. ठीक है, console.log ये लिखेंगे ना. console.log के अंदर क्या लिखेंगे हम लोग? अब टर्नरी ऑपरेटर्स बैकटिक्स वाले को क्या बोलते थे? टेम्पलेट्स, स्ट्रिंग टेम्पलेट्स का यूज़ करना है. ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे. ठीक है, ओके. हाँ, इसमें क्या लिखेंगे? हेलो कॉमा जेन के जगह हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रिंग को इंटरपोलेट करेंगे यूजिंग आवर एक्सप्रेशन, दैट इज विल यूज दिस एंड यूज कर्ली ब्रैकेट्स, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अपना वेरिएबल यूज़र नेम. ऑलराइट, तो ये होगा कब? जब हम लोग का स्टेटमेंट ट्रू होगा. तो स्टेटमेंट फॉल्स होगा तब क्या लिखेंगे? लेट्स सी. तो यहाँ लिखेंगे console.log and inside these brackets we'll use the backticks again and we'll type in simply hello. hello. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको? हेलो क्या आपको क्लियर है किडीज? ओके, लुक्स लाइक इट्स करेक्ट. तो हम लोग को बहुत भयंकर से लॉग आउट में एरर आया है. एरर क्या एरर है? यूज़र नेम इज़ नॉट डिफाइंड. यूज़र नेम USERNAME US. ओके, हियर कैपिटल एन होगा ना बच्चा. इसे एरर से घबराते नहीं. हेलो ऐश, देख रहे हो? तो ये हम लोगों ने कर लिया. देखो हम लोगों ने किया ना, ये देखो यूज़र नेम लिख लिया. उसके बाद हम लोगों ने यूज़र नेम हम लोग का क्या है? हम लोग का ये वेरिएबल है या फिर हम लोग का यहाँ पे कंडीशनल है. उसके बाद क्वेश्चन मार्क के साइन के बाद हम लोग का पहला स्टेटमेंट. ठीक है, बिल्कुल सही है. और दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है. सही है, क्लियर? तो ऑलराइट, तो हम लोग तीसरे वाले स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं. हमने उससे ब्लू टिक मारा. बिल्कुल, इंस्टाग्राम का ब्लू टिक मिल चुका है हम लोग को. तो थर्ड वाला जो ये क्वेश्चन है बच्चा, उसको ध्यान से देखो. क्रिएट अ वेरिएबल नेम्ड यूजर क्वेश्चन. द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल शुड बी स्ट्रिंग दैट इज द क्वेश्चन द यूजर वांट्स टू आस्क द मैथ 8 बॉल. सो इसको करना कैसे यार? ओके, तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है तो कांस्टेंट रहने वाला है, इसलिए हम लोग ना कांस्टेंट वेरिएबल का इस्तेमाल, आप वार का भी यूज़ कर सकते हो, कॉन्स्ट का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा कि आप कॉन्स्ट का यूज़ करो. ठीक है, कॉन्स्ट. उसके हम लोग ना यूज़र, आपको याद है ना कॉन्स्ट कीवर्ड से भी हम लोग वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, बट हम लोग उसको कुछ मेंशन करना पड़ेगा इक्वल टू समथिंग. तो अब हम लोग को
तो यहाँ पे आप कुछ भी क्वेश्चन लिख दो, क्या चाहते हो कि यूज़र क्या पूछे। यूज़र पूछना चाहता है हाउ कैन आई लर्न कोड। नो, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। ओके, इट विल आस्क इन द कोड्स will I become no, I don't know the spelling, I forgot. Will I become will I become rich? Okay, this is the question. Let's end the statement. ठीक है, बेसिकली हम लोगों ने ये क्वेश्चन चाहते हैं, वो पूछे कौन। ठीक है, तो फोर्थ स्टेटमेंट में आ जाओ। राइट अ console.log फॉर द यूजर क्वेश्चन स्ट्रिंग what you have including the user name in the console statement if you wish. ये क्या हो गया है? So बेसिकली हम लोगों को ना यूज़र का क्वेश्चन को आउटपुट देना है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? सॉरी फॉर द डिस्ट्रैक्शन। तो बेसिकली कह रहे हैं ना कि आप console.log लिखो, console.log का एक स्टेटमेंट लिखो, ठीक है। उसको ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पे आप इंटरपोलेशन का यूज़ कर सकते हो। इंटरपोलेशन यूज़ करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करना पड़ता है? टेम्पलेट लिटरल्स। टेम्पलेट लिटरल्स से आसानी होगी। तो यहाँ पे क्या लिखना है? सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पे पहला वाला हम लोग अपना वेरिएबल को इंटरपोलेट करेंगे, जो हम लोग का है यूज़र नेम। ठीक है, यूज़र नेम इतना हैज़ आस्क्ड। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? हम लोग का सेकंड टेम्पलेट, सेकंड इंटरपोलेशन ऑफ द वेरिएबल। कैसे स्टार्ट करेंगे? फिर ये वाला साइन, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? यूज़र लिखेंगे, क्या बताते हैं लोग? क्वेश्चन। ठीक है, क्या यूज़र क्वेश्चन हम लोग का वेरिएबल सही दिख रहा है आपको? यार दिस इडियट्स, या सही है? लो एंटर दाबते हैं। ओप्स, यूज़र नेम इज़ नॉट डिफाइंड। ऑलराइट, फिर से वो गलती कर दी, कैपिटल एन लिखना पड़ेगा ना यहाँ पे हम लोग को। ठीक है, तो हेलो, ऐश हैज़ आस्क्ड विल आई बिकम रिच। अच्छा, इसको ना थोड़ा सा और बेटर वैसे दिखाते हैं। थोड़ा सा ना हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे ना, ये वाला साइन दे देंगे, मतलब ये वाला कोट्स दे देते हैं कि ना स्पेसिफिकली पता चल पाए। देखो अब सही लग रहा है, ठीक है। और एट द एंड में फुल स्टॉप भी दे देते हैं। चेक करें, देखो क्या सही दिख रहा है? हेलो ऐश, ऐश हैज़ आस्क्ड विल आई बिकम रिच। ये वाला सही लग रहा है ना आपको? तो ऐसे ही करना था इसको, console.log का इस्तेमाल करके हम लोग का सही हो गया। अब आगे चलते हैं नीचे, ठीक है। तो वी वांट टू जनरेट अ रैंडम नंबर बिटवीन 0 and 7। ठीक है, तो बेसिकली ये जो होंगे ना, ये रैंडम आउटपुट्स क्रिएट करने में मदद करेंगे कि अगर 0 हुआ तो क्या आउटपुट आना चाहिए, क्योंकि हम लोग को रैंडमली हर एक बार अलग आउटपुट देना है ना, फॉर दैट वेरी रीज़न। ठीक है, हर बार अलग टेक्स्ट है। फॉर्चून में अगर एक ही तरह का टेक्स्ट बताएगा तो बोलेगा कि हाँ आप जीतोगे, आप हारोगे, हाँ ये तो सर्टन है, ऐसा है वैसा है। देखो मैजिक 8 बॉल का यहाँ पे दिखा रहा है कि कितना सारा ना ये होता है पॉसिबल आंसर्स, मतलब ये फॉर्चून बताने के लिए। इट इज़ सर्टन, इट इज़ स्लो, विदाउट अ डाउट। खतरनाक टाइप का क्या है? नेगेटिव आंसर, डोंट काउंट ऑन इट, माई रिप्लाई इज नो, माई सोर्सेस इज नो। समझ रहे हो? मतलब ये वही तो होता है कि कार्ड निकाल के दिखाता है आपको कि यू नो कि आपकी दिशा गलत है और टाइगर श्रॉफ सही है। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहे? राइट, हाँ क्लियर है यहाँ तक? मैं आगे बढ़ जाऊँ प्लीज़ 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 प्लीज़। ठीक है, एक सेकेंड ना, ये लोग पता नहीं यार कभी एडजस्ट नहीं होता है प्रॉपर। आई थिंक इट्स ओके। तो हम लोग यहाँ क्रिएट अनदर वेरिएबल, नेम इट रैंडम नंबर। कैन वी क्रिएट अनदर वेरिएबल नेम रैंडम नंबर? ऑल राइट, रैंडम इज इन द कैमल केस, नंबर MBR। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, रैंडम नंबर हम लोग को, अच्छा लेट की यूज़ करना पड़ेगा, कॉन्स्ट भी इसको लेट यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जो रैंडम नंबर है ना, कैन यू यूज़ अ कॉन्स्ट कीवर्ड और ये नो, शुड वी यूज अ कॉन्स्ट कीवर्ड? आई डोंट नो, आई डोंट थिंक सो। ओह सॉरी, वेयर डिड आई गो? हाँ, रैंडम नंबर एक अलग अलग वेरिएबल सेट करना है, सेट इट इक्वल टू द एक्सप्रेशन। ठीक है, तो बोल रहा है कि आप अब मेरे को, अगर मैं आपसे पूछूं कि
अगर आपको मैं कहूँ कि मेरे को 0 और 10 के बीच में 0 और 10 के बीच में रैंडम नंबर्स चाहिए, एंड दैट्स सो दोज नंबर्स शुड बी नेचुरल नंबर्स, ठीक है, या फिर कहूँ कि आई वांट होल नंबर्स देयर, ठीक है। तो कैसे करोगे आप? इजी तो है नहीं, इजी है क्या? इजी तो नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हम लोग को, इसमें मैथ नाम के लाइब्रेरी का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और फ्लोर से क्या होता है, वो वाला जो राउंड ऑफ हो जाता है नेचुरल नंबर केस में या होल नंबर केस में। और मैथड रैंडम से क्या होता है, 0 और 1 के बीच में रैंडम नंबर्स निकालते हैं, उसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 और 8 के बीच में नेचुरल नंबर्स, 8 एक्सक्लूसिव, ठीक है, 8 को कभी टच ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। यार मेरे को एक सेकंड, मेरे को एक थोड़ा सा टाइम देना, आई एम जस्ट हैविंग सम प्रॉब्लम। वेलकम बैक किडीज। सो या आई डिड माय वर्क। सो हम लोग क्या करें, हम लोग को क्या करना है, एक रैंडम नंबर नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करना है, एंड वी वांट इट टू बी यू नो अ नंबर बिटवीन 0 and 7, ठीक है। 8 एक्सक्लूडेड, 8 कभी इंक्लूड करना नहीं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मैथ डॉट फ्लोर, किसकी वजह से क्या होगा, जो अंदर का जो ये नंबर है जो हम लोग लिखने वाले हैं वो राउंड ऑफ हो जाएगा। क्या लिखेंगे, मैथ डॉट रैंडम। इससे क्या होने वाला है, 0 और 1 के बीच में, इस वाले पार्ट से 0 और अभी अगर देखो तो 0 और 1 के बीच में ही, आई डोंट नो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा 0 आई गेस ऑल द टाइम। लेट्स सी, कंसोल डॉट लॉग रैंडम नंबर सोच लेता पहले इसके बीच में क्या आएगा, ये 0 और 1 के बीच में रैंडम नंबर प्रोड्यूस करता है, तो फॉर श्योर इसका 1 ही आउटपुट आएगा ऑल दैट, नहीं 0 आ रहा है, मतलब सॉरी 0 ही आएगा, 1 आने ही चांस ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ना आएगा ही नहीं बेसिकली, बिकॉज यहाँ पे एक्सक्लूसिव हो जाता है ना। क्योंकि अगर मैं इसी को बस ऐसे छोड़ दूँ, ठीक है, देखो क्या आ रहा है आउटपुट, दिख रहा है आपको आउटपुट, देख रहे हो 1 कभी नहीं पहुँच रहा है। अगर 1 कभी पहुँच ही नहीं रहा है तो राउंड ऑफ करते समय तो 1 तो गायब ही रहेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या चाह रहे हैं, इसको किसके बीच में, 0 और 7 के बीच में, ठीक है। 0 और 7 के लिए हम लोग को 8 करना पड़ेगा, क्यों, अब पूछोगे क्यों, तो देखो 2 3 4 हर बार अलग अलग नंबर आएगा, 3 4 7, लेकिन 8 कभी नहीं आएगा। तो 0 और 7 के बीच में तो आ रहा है, तो हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को अपना मिल जाएगा कंडीशनल्स कि अच्छा इस टाइम पे 0 होगा तो ये आउटपुट चाहिए, 1 होगा तो ये, इस तरह करते करते 7 होगा तो ये आउटपुट चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या सक्सेसफुल ऐसे कर लिया, बिल्कुल कर लिया। इसे मिटा दूँ पार्ट, क्या हम लोग से टिक मार दें, बिल्कुल टिक मार दो। क्या नीचे आ जाएँ आप, क्रिएट 1 मोर वेरिएबल नेम्ड 8 बॉल, ठीक है। इसको क्या करना है, ये लेट का यूज़ करेंगे, क्योंकि हम लोग को इसका वैल्यू को बार बार चेंज करना है, तो इसलिए हम लोग को 8 बॉल को लेट का यूज़ करना पड़ेगा। हम लोग को शायद रैंडम नंबर को भी कॉन्स्ट का यूज़ कर सकते थे, देखते हैं कॉन्स्ट यूज़ करके, नहीं कर सकते हैं क्योंकि रैंडम नंबर का वैल्यू कांस्टेंट नहीं हो सकता, लेट ही होगा। क्यों, क्योंकि ओके ये क्या हो गया, अच्छा सॉरी, नहीं कॉन्स्ट यूज़ हो सकता है, फिर लोग जाओ देखते हैं, हाँ हो सकता है, ठीक है। क्या कॉन्स्ट लिखने के बाद भी हम लोग को बार बार अलग अलग आउटपुट मिल रहा है, हाँ मिलेगा ही भाई, 0 मिला, 2 मिला, ठीक है। तो कॉन्स्ट लिखने के बाद भी हो रहा है बेसिकली, हाँ इसका मतलब इसका वैल्यू बाय द वे रैंडम नंबर का तो वैल्यू हम लोग बाद में चेंज करने नहीं वाले हैं। आप किसका चेंज करने वाले हैं, हम लोग 8 बॉल का वैल्यू बाद में चेंज करने वाले हैं, हम लोग उसको कुछ और असाइन करेंगे, ठीक है। तो क्या मैं यहाँ पे लिख दूँ, लेट यूज़ करके, या फिर वार यूज़ कर लेते हैं, वार यूज़ करके लेट यूज़ करते हैं, नया है लेट भाई, लेट नया फंक्शन है, लेट नया फीचर है ना, लेट EIGST 8 BALL बॉल एंड सेट इट इक्वल टू एन एम्प्टी स्ट्रिंग विच इज़ अ फॉल्स वैल्यू, राइट। इसको भी फिलहाल ऐसे करके छोड़ देते हैं, नीचे जाते हैं, वी विल सेव द वैल्यू टू दिस वेरिएबल इन द नेक्स्ट स्टेप डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ आवर रैंडम नंबर, ठीक है, ठीक है। इसलिए कॉन्स्ट का यूज़ ना करो, बोलेगा कॉन्स्ट यूज़ का मत करो या लेट का यूज़ करो, सिंस वी नीड टू अपडेट द वैल्यू ऑफ आवर वेरिएबल लेटर ऑन, ठीक है। अब हम लोग का मेन चीज़ आया, अब आया कंडीशन, कंट्रोल फ्लो क्रिएट करने का बारी। We need to create a control flow that takes in the random number we made in step 5. This is the step 5. 1 2 3 4 5 step 5 में
random number and the assign 8 ball to reply the magic 8 ball to its return। तो बोल रहा है आप if else का इस्तेमाल कर लो या फिर आप स्विच का इस्तेमाल कर लो, आपको जो पसंद आता है उसका इस्तेमाल करो, या फिर आप if else का जगह टर्नरी ऑपरेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो पहले मैं थोड़ा सा मेहनत करके ना if else स्टेटमेंट से क्रिएट करता हूँ, ठीक है, फिर थोड़ा सा पॉज लूँगा, फिर स्विच टर्नरी ऑपरेटर से क्रिएट करूँगा, फिर मैं आऊँगा लास्ट में स्विच स्टेटमेंट, ठीक है। मैं सब करूँगा तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, बट आई डोंट केयर, डू यू केयर? यू शुड केयर मच, बराबर। सो ये हम लोग का आउटपुट सही है। आप चाहो तो इसमें लिखा है कि आप आउटपुट चेंज भी कर सकते हो, यू नो, फीलिंग क्रिएटिव देन मेक योर ओन रिस्पॉन्सेस, ठीक है। हम उतना क्रिएटिव फील तो कर नहीं रहे हैं अभी फिलहाल। तो रैंडम नंबर इज 0 देन सेव द आंसर टू 8 बॉल वेरिएबल, रैंडम नंबर इज 1 देन सेव द नेक्स्ट आंसर, ठीक है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करना है, इफ स्टेटमेंट से स्टार्ट करना है। हम लोग का तो वेरिएबल डिफाइंड है, हम लोग 2 वेरिएबल डिफाइंड है, रैंडम नंबर और ये। देखो बच्चा लोग, हम स्टार्ट कर रहे हैं, ओके। इफ, ठीक है, क्या होगा इसके अंदर, ब्रैकेट, सॉरी, इफ क्या इसमें ये होगा ब्रैकेट्स, हाँ, यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे, हाँ, रैंडम नंबर, सॉरी बच्चा, रैंडम में कैपिटल होगा ना। इफ रैंडम नंबर इज इक्वल टू, नहीं, ऐसे मॉडरेट लिख भी इक्वल टू, हम लोग कंपेयर करें ना तो इक्वल टू का साइन मत करो, उससे क्या हो जाएगा, असाइन हो जाएगा, हमेशा एक ही तरह का आउटपुट आएगा, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, इफ रैंडम नंबर इज स्ट्रिक्टली लिखो या ऐसे भी ठीक है, इक्वल टू 0, हम लोग का पहला तरीका, ठीक है। तो हम लोग इसका ब्लॉक कोड लिखेंगे, क्या होगा यहाँ पे, क्या लिखना है यहाँ पे, EIGHT 8 BALL बॉल एज 8 बॉल इक्वल टू स्ट्रिंग, क्या होगा स्ट्रिंग का नाम, इट इज सर्टेन, ठीक है, इट इज सर्टेन। क्या कॉपी पेस्ट कर लें अभी, नहीं करना चाहिए बट ठीक है, इट इज सर्टेन, ठीक है। हम लोग का पहला आउटपुट, ठीक है, तो हम लोग पहला कर लिए। उसके बाद क्या लिखेंगे, एक एल्स स्टेटमेंट लिखेंगे, एल्सिफ स्टेटमेंट, क्योंकि बहुत सारे स्टेटमेंट है ना, एक एल्सिफ स्टेटमेंट, उसके अंदर का ये रैंडम नंबर, ओके, मॉडरेटली इक्वल टू 1, ठीक है, कंपेयर कर रहे हैं हम लोग इक्वल टू करके, EIGHT 8 BALL बॉल इक्वल टू, क्या लिखेंगे दूसरा ना, इट इज डिसाइडेडली सो। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको कॉपी कर लो, इट इज डिसाइडेडली सो, ठीक है। क्या ये भी कंप्लीट हो गया, हाँ। कुछ एरर क्यों आया, रैंडम नंबर 8 बॉल, कुछ एरर आया, इनवैलिड सिंटैक्स, क्यों ऐसा क्यों कह रहे हो, रैंडम नंबर 8 बॉल सब तो सही लग रहा है हमको, कहाँ पे सिंटैक्स एट, कहाँ पे, इफ एल्सिफ तो सही स्टेटमेंट लगता है मेरे को, नहीं पता भाई, स्ट्रिक्टली कर देंगे इसको, कहाँ गलत हो गया वो तो बताओ, यहाँ तक तो सही है ना, यहाँ तक, हाँ यहाँ तक सही है, एल्स इफ करते हैं रैंडम नंबर इक्वल्स टू 1, तो सर्टेन, यहाँ तक सही है, ब्रैकेट्स टाइप इन 8 बॉल सही है ना, इक्वल टू it is decidedly so yeah, I think we are good। हाँ वर्क कर गया, आई डोंट नो क्या गलती हो रहा था, अभी तो वर्क कर गया, इट इज़ डिसाइडेडली सो। स्पेलिंग फकअप हो गया, इसलिए स्पेलिंग को ठीक करते हैं हम लोग, ठीक है। स्पेलिंग कॉपी, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक सही है। अब तीसरा एल्सिफ स्टेटमेंट लिखो, एल्सिफ, यार बार बार लिखना पड़ रहा है ना, रैंडम, हाँ कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो बट हम लोग करेंगे नहीं, हम लोग को अच्छा हैबिट डेवलप करना है। नंबर इज कंपेरेटिवली इक्वल टू, दूसरा वैल्यू क्या देंगे, 2 दे देते हैं, ठीक है। और हम लोग इसी तरह कंटिन्यू करेंगे, EIGHT 8 BALL बॉल, ठीक है, उसको हम लोग इक्वल करेंगे एक स्ट्रिंग से जिसका नाम होगा रिप्लाई हैज़ इट ट्राई अगेन, रिप्लाई हैज़ इट ट्राई अगेन,
क्या यार, क्या क्या होता है इसको, हैज़ ही लगी फीलिंग है। ठीक है, ये वाला भी सही हो गया। अब कितना, चौथा वाला स्टेटमेंट लिखते हैं, एल्स इफ, चलो ठीक, आप लोग समझ में, रैंडम नंबर इज कंपेरेटिवली इक्वल टू 3, तो 300 नहीं बचा 3, उसके बाद कंपेयर EIGST 8 बी, अब यार बी एरेबल बॉल इज इक्वल टू, हम लोग का तीसरा कोड कैनॉट प्रिडिक्ट नाउ, ये ठीक है। कितना अच्छा है हम लोग का हाथ में सब कंट्रोल। ठीक है, हम लोग धीरे धीरे फिर 30 चौथा लिखेंगे, कितना हो गया 1 2 3 4 5वां, यानी फिर चौथा हम लोग का एल्स इफ स्टेटमेंट। ठीक है, अरे एन डी यू एम रैंडम एंड यू एम बी ईयर नंबर इज कंपेरेटिवली इक्वल टू, खूब सा दिखने दो इसको चीज़ों को। क्या होगा 4 ना, 4, तो आउटपुट क्या आना चाहिए उसका, EIGST 8 बी एरेबल बॉल इज इक्वल टू स्ट्रिंग, क्या आउटपुट होगा, डू नॉट काउंट ऑन इट, इसको हाथी से लिख देते हैं, डू नॉट काउंट ऑन इट। क्लियर है आपको, क्लियर है ये चीज़ें, यहाँ तक तो समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग को स्टेटमेंट एंड करना है, दूसरा एल्स इफ स्टेटमेंट, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, आई वाज सो स्केयर्ड, आई नो, वाओ माय माइंड, रैंडम नंबर इज इक्वल टू 5, ठीक है, नहीं EIGST 8 बी 8 बॉल इक्वल टू हम लोग का स्ट्रिंग है ना, क्या होगा स्ट्रिंग हम लोग का, आप बताओ, डू नॉट काउंट कर, माई सोर्सेज सेज नो, यानी नेगेटिव रिप्लाईज आ रहा है अब। ठीक है, माई सोर्सेज सेज नो ठीक है, कौन सा वाला पता नहीं मेरे को, आई थिंक इट्स सिक्स्थ ऑफ कोर्स, सिक्स्थ एफएल स्टेटमेंट होगा। अब रेन दम एन यू, हाँ भाई NUMB है नंबर इज कंपेरेटिवली इक्वल टू व्हाट आर यू सेइंग 660। ओके, आगे बढ़ जाए, बहुत लंबा वीडियो होने वाला है, आई एम नॉट जोकिंग बिकॉज ऑफ माई स्किल्स। आउटलुक नॉट सो गुड, आउटलुक नॉट सो गुड, लुक्स ब्यूटिफुल। ठीक है, स्टेटमेंट गया एंड, क्या नीचे आ जाए बच्चा, ओके, एल्स इफ, क्या अंदर मैं लिख दूँ, रैंडम नंबर इक्वल 7, then we sign point to yes final। ठीक है, तो इसको हम लोग एल्स इफ ना लिख के, लास्ट स्टेटमेंट है तो एल्स ही लिख देते हैं, एल्स। ठीक है, तो 7 ही होगा ना, 7th आउटपुट। ठीक है, बचा क्या, 0 में से अगर 7 नंबर्स हैं के पास और 6 इस्तेमाल हो गए तो लास्ट में क्या वही होगा, ये आउटपुट देगा। क्लियर है, डिफॉल्ट स्टेटमेंट एल्स स्टेटमेंट। क्या मैं इसको अब एग्जीक्यूट कर दूँ, देखो कोई एरर नहीं हुआ। ठीक है, हम लोगों ने सबका इस्तेमाल कर लिया। राइट अ कंसोल स्टेटमेंट जिसमें आप, ठीक है, लास्ट में अगर इसको बार बार रन करो तो अलग अलग आउटपुट आएगा, वो हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है कि हमारा बेटा है कंसोल लॉग स्टेटमेंट लिखना है, कंसोल डॉट लॉग, उसके बाद हम लोग लिखेंगे ब्रैकेट्स के अंदर टिक, ये वाला कोड्स के साथ हम लोग इसमें टेम्पलेट डिटेल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रिंट एग्जीक्यूटेबल आंसर द वैल्यू ऑफ द एक्चुअल वैल्यू। ओके, तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग 8 मैजिक 8 बॉल, मैजिक 8 बॉल सेज, ठीक है, व्हाट डज इट से, अभी पता चलेगा क्या कहना चाहता है, तो वो ध्यान नहीं देना, हम लोग को लिखना है ये यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना है, 8 बॉल्स EIGST 8 BALL बॉल्स, ये करना है 8 बॉल। चलो, तो आई थिंक हम लोगों ने कर लिया, तो आई थिंक हम लोग का आउटपुट आ गया, हम लोगों ने ये लिख दिया, उसके बाद हम लोगों ने रन भी कर लिया फ्यू टाइम्स।
ठीक है, तो आपको मैं दिखाता हूँ क्या कहना चाह रहा है ये। देखो, सबसे पहला तो एक स्टेटमेंट हेलो ऐश नाम का, जो हम लोग उसका नाम चेंज कर देते हैं, लेट्स लीव इट टू नथिंग। तो हेलो जस्ट सिंपली लिखा हेलो, ठीक है, हैज़ आस्क्ड हेलो। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग लिखते थे ना, बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा फिर, मैं वो इतना कॉम्प्लिकेशन अभी दिमाग में अलाउ भी नहीं कर रहा है, काइंड ऑफ बिगिनर। सो बेसिकली ठीक है, तो हेलो हैज़ आस्क्ड विल आई बिकम रिच, द मैजिक 8 बॉल सेज कैनॉट प्रिडिक्ट नाउ, play has it try again, outlook not so good, साइंस पॉइंट टू यस आई विल बिकम रिच। तो बेसिकली वो हो गया, वर्क कर गया। कि यहाँ पे हम लोग कुछ और नाम लिखें तो कुछ और आएगा, हाँ आएगा, सदफ, हेलो सदफ, सदफ विल आई बिकम रिच, माय सोर्सेस नो 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 द चेन, या इट्स डिसाइडेडली सो आई विल बिकम रिच, माय सोर्सेस नो it is decidedly so, I cannot predict now, say yes, say yes, say yes, say yes, say yes, oh god, say yes, oh god. Honestly, do not count on this. It is certain, it's certain, I'll become rich. So basically if statement का इस्तेमाल करके हम लोगों ने ये create कर लिया है, तो देंगे अब हम लोग थोड़ा सा रेस्ट लेंगे, and I'll come back, I'll create it using the switch statement, ठीक है, and ternary operator वो मैं create करूँगा, ठीक है, catching up soon. Hey kiddies, what is up? So अगर हम लोग ternary operator से बनाने की कोशिश करेंगे तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, you know, like I was thinking about refactoring or editing this, but I don't know if it would be a good idea or not. Okay, let's try to refactor it only. तो हम लोग को कुछ कट पेस्ट करना पड़ेगा, that would be really mess. तो हम क्या करेंगे ना, तो इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग ना फर्स्ट अपना कंडीशनल लिखते हैं, फर्स्ट जावास्क्रिप्ट, सॉरी फर्स्ट क्या लिखते हैं, वेरिएबल का नाम लिखते हैं पहले लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो वेरिएबल कौन है यहाँ पे हम लोग का, रैंडम ना, रैंडम नाम का ना, रैंडम नंबर, और पहला रैंडम नंबर किस चीज़ के इक्वल होना चाहिए, स्ट्रिक्टली इक्वल टू 0। ऐसे कट पेस्ट करते हैं, प्लीज़ कॉपी करते हैं इसको, कट सॉरी कॉपी करते हैं, कॉपी इसको मारते हैं पेस्ट, रैंडम नंबर इक्वल टू 0। हम लोग का पहला कंडीशनल हो गया, क्वेश्चन मार्क का साइन याद है, इसके बाद हम लोग क्या, सॉरी पहला कंडीशनल हो गया, उसके बाद पहला क्या लिखते हैं, एक्सप्रेशन लिखते हैं, पहला स्टेटमेंट क्या है, ये है स्टेटमेंट, ठीक है। हम लोग इसको नीचे उतारते हैं, इस टू का साइन देते हैं, इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, सेकंड स्टेटमेंट, ठीक है, अगर वो फॉल्स हो जाए, ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट रैंडम नंबर इक्वल टू 1, ठीक है। और क्या इसमें क्वेश्चन मार्क देंगे, हाँ, तो क्या आउटपुट आना चाहिए, ये आउटपुट आना चाहिए क्या, 8 बॉल इक्वल टू 0 का हो गया ना, 0 को इरेज करते हैं, 8 बॉल इक्वल टू ये वाला आउटपुट चाहिए हम लोग को, देख रहे हैं कि सही होगा कि नहीं, आई एम डाउटिंग दिस वुड बी करेक्ट। फिर हम लोग एंटर दबाना, फिर ये वाला साइन देना, फिर रैंडम नंबर इक्वल टू 2 लिखेंगे, इसको इरेज कर दें, बिल्कुल सही, रैंडम नंबर इक्वल टू 2 कॉपी करते हैं, यहाँ लाते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं, फिर क्वेश्चन मार्क का साइन देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाला कॉपी पेस्ट करते हैं, क्या इसमें एक्सक्लेमेशन सॉरी सेमीकोलन का जो साइन है एट द वेरी एंड, क्या वो कॉपी करेंगे, तो हम कहेंगे नहीं, कॉपी नहीं करना उसको, ठीक है। कॉपी क्यों नहीं करना, क्योंकि उससे वो स्टेटमेंट जो है ना एग्जीक्यूट होना रुक जाएगा, समझेगा, एंड ऑफ द लाइन, नो नीड टू एग्जीक्यूट एनीथिंग। सो हम लोगों ने 2 भी कर लिया, हम लोग को क्या करना है अब 3, ना ईजी है ना टर्नरी ऑपरेटर, देखते हैं कितना ईजी है कि कितना सही भी हो रहा है, ओके। टर्नरी ऑपरेटर 3 लिख दिया, और इसके अंदर का ये वाला नो ट्रू वाला कोड लिखना है, अगर ट्रू ना है तो क्वेश्चन मार्क का साइन दो, अगर ट्रू ना है तो क्या करें भैया, आगे बढ़ जाओ भैया, सॉरी आगे आ जाओ भैया, आगे आने के बाद इसको एग्जीक्यूट करो, अब 3 हो गया पूरा, 3 को डिलीट कर दो, उसके बाद 4 पे आ जाओ, 4 पे आने के बाद 8 वाली ये मतलब लास्ट वाला ये ना भाई, इसको मत लिखना, ओके। किडी हो क्या, क्वेश्चन मार्क का साइन दो, कौन सी चीज़ एग्जीक्यूट करना है वो, तो अगर वो सही है तो आगे बढ़ते रहो, जब तक रुको मत, जब तक आपको आंसर ना मिल जाए, मतलब आखिरी स्टेटमेंट तक ना पहुंच जाओ, ठीक है बच्चा।
क्या हम लोग रैंडम इसको लिखेंगे जी, अब सॉरी जी, तो हम लोग इसको लिखते हैं रैंडम नंबर 5। ये क्या हम लोग 8 बॉल की जगह, सॉरी 8 बॉल की जगह इसको कॉपी पेस्ट मारेंगे, इसको 8 बॉल का स्टेटमेंट्स की जगह, बिल्कुल ठीक है। देखते हैं, अब हमको तो नहीं लगता ये सही होगा क्योंकि इतना आसान तो नहीं हो सकता कोई कोड। अब देखते हैं रैंडम, कहीं तो कुछ गलती कर रहे होंगे ऐसा फील आ रहा है, राइट। कोई बात नहीं, इस फीलिंग के साथ बने रहे, आसानी मिलेगी। ठीक है, क्वेश्चन मार्क का साइन, उसके बाद 8 बॉल क्या है, इक्वल टू दिस, ठीक है, फेस्ट का साइन, इसको मारते हैं डिलीट बा मार दे का। हाँ, उसके बाद हम लोग को लास्ट स्टेटमेंट लिखना है, तो लास्ट स्टेटमेंट के लिए क्या एल्स लिखेंगे, बिल्कुल भी नहीं, अब सेमीकोलन छोड़ गया था भाई दबे, बट ठीक है हम लोग आज पहले लिखे थे कोई बात, सॉरी यार क्या कर रहे हैं, हाँ सेमीकोलन छोड़ गया, कोई बात नहीं, कि हम लोग का स्ट्रेट अवे लास्ट स्टेटमेंट ये होना चाहिए। तो भयंकर आउटपुट में एरर आया है, भयंकर वाला, तो इसको यहाँ तक करके छोड़ देते हैं। फिर भी एरर, जो लेवल का एरर आया है, अनएक्सपेक्टेड सिंटेक्स, ये कहाँ लिख दिया मैंने भाई, हैं ये कहाँ चला गया, ये कब हो गया भाई यार। टर्नरी ऑपरेटर लिखते कैसे थे फिर, टर्नरी ऑपरेटर एक बार देख ले। ओके, टर्नरी ऑपरेटर में लिखने में गलती हुई है सिंटेक्स में, टर्नरी ऑपरेटर सिंटेक्स जावास्क्रिप्ट, यस। सो किसी भी कर लेता हूँ, सो अब मेरे को नहीं पता टर्नरी ऑपरेटर में इसको लिखेंगे कैसे यार, राइट। ओके, गिव मी सम टाइम देन आई विल कम विद एन आंसर। So yeah, welcome back. I know for some reason my camera isn't showing up, so it started to show up. Wait. So we found the solution, guys. We found the solution. So basically problem कहाँ पे आ रहा था, प्रॉब्लम आप सोचे तो यहाँ पे आ रहा है, नहीं आ रहा है, बिल्कुल यहाँ पे कोई गलती नहीं है, सही है, बिल्कुल सही है, कोड्स में लिखना है। यहाँ पे ध्यान से देखो नीचे की तरफ, इसलिए ऐसे आई नीड अ बिग मॉनिटर, व्हाटएवर द थिंग इज़ कि नीचे की तरफ अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि मज़ा आ रहा था यहाँ पे इन लोगों को छुपके से बैठ के। तो बेसिकली लास्ट का जो स्टेटमेंट है एल्स या डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट या कहें कि 7th स्टेटमेंट, उसके साथ साथ यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रहे थे, तो मेरे को ये चाहिए एज अ लास्ट आउटपुट, राइट। तो हम लोग क्या यहाँ पे is2 का साइन देंगे, बिल्कुल is2 का साइन देंगे, ठीक है, ठीक है, ध्यान से देखो, ठीक है, क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर है। अरे यार व्हाट्स दैट, वेयर कैन आई गेट दिस डॉल, विच डॉल ब्रा, आई डोंट केयर, टेक्स्ट मैसेज। तो आप लोगों को क्या क्लियर हुआ मैं क्या बोलना चाह रहा था। अगर मैं अभी कंट्रोल एंटर दबाऊं ना, फिर भी एक एरर दिखाएगा, दिखा रहा है, नो देयर इज़ नो एरर। आई थिंक एरर हम लोग का संभल गया आफ्टर दिस। क्या आपको क्लियर हुई बात। तो हम लोग किस चीज़ का ध्यान रखना है कि इन लोगों को ब्रैकेट्स में रखना है, ठीक है, पहले वाला कंडीशनल को, ठीक है। तो डू नॉट काउंट ऑन दिस आ रहा है, सेकंड ऑप्शन क्या आ रहा है, कैन नॉट प्रिडिक्ट नाउ। अरे सेम टू सेम फंक्शनैलिटीज़ लेके आ गए कि नहीं, टर्नरी ऑपरेटर्स का यूज़ करके आ गए ना, ठीक है, आगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या हम लोग थोड़ा सा पॉज लें और वापस से फिर स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके बनाए इस पर, ठीक है, क्लियर है ना, थोड़ा सा डाउटफुल है, आई मेक अ वीडियो ऑन दिस अगेन, बट अभी तक क्लियर है ना, क्लियर चल, आई एम कमिंग बैक इन फ्यू मिनट्स। सो माई लवली किडीज, वेलकम बैक, ठीक है। तो हम लोग ना इसको इरेज कर दें, ये वाला टर्नरी ऑपरेटर जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट लग रहा है, इजी लगने के बाद भी तो इरेज करते हैं हम लोग ना, स्विच स्टेटमेंट लिखते हैं इसमें, ठीक है। इरेज नहीं करेंगे हम लोग, थोड़ा सा इसको नीचे कर देंगे, और नीचे क्यों करेंगे यार, इसको कमेंट आउट कर देंगे, कमेंट आउट भाई फिर कलर अलग दिखने लगता है, तो थोड़ा सा हम लोग को कॉपी पेस्ट करने में प्रॉब्लम आ जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, पहला स्विच स्टेटमेंट, अंदर क्या होगा, हम लोग का वो मेन वेरिएबल होगा जिससे सब कुछ कंपैरिजन होगा। क्या यहाँ पे 8 बॉल होगा हम लोग का वेरिएबल, नहीं यार रैंडम नंबर होगा ना सबसे मेन वाला वेरिएबल, रैंडम, बकवास नहीं, रैंडम नंबर, राइट। क्या उसके बाद हम लोग ब्रैकेट देंगे, हाँ इसके अंदर सब कुछ आएगा, बिल्कुल सब कुछ आएगा, मतलब
केस आएगा भाई, केस। अच्छा ठीक है, केस 0, बिल्कुल केस 0 से स्टार्ट करेंगे, केस 0 से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद S2 का साइन देंगे यहाँ पे, केस 0 का S2 का साइन देने के बाद क्या आएगा बताओ, नीचे क्या आएगा, एक कोड आएगा, ब्लॉक कोड का नाम क्या है, 8 बॉल, 8 बॉल इक्वल टू सर्टन, पहला वाला केस 0 के लिए। हो गया, ठीक है। कि नीचे जाने के बाद हम लोग इसको ब्रेक कर दें, ब्रेक कीवर्ड का इसके बिल्कुल। तो इसी का कितना तो बनाना है हम लोग को, कॉपी कितना करना है इसको, 7 बार, सॉरी कॉपी नहीं किया, इसको कितना बार कॉपी करना है, 7 बार ना, और 1 2 3, ओहो ना, 1 1 2, ये क्या कर दिया भाई मैंने, 3 4 5 6 थिंक 7 वाला जो है वो डिफ़ॉल्ट होगा, कोई केस नहीं, तो इसको डिफ़ॉल्ट लिख देते हैं, DEFAULT, डिफ़ॉल्ट, ठीक है, डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट, ठीक है, कोई कंडीशन कुछ नहीं इसमें, ठीक है। पहला वाला के लिए तो ये सही है, क्या दूसरा वाले के लिए भी सही है ये, नहीं ना, दूसरे वाले के कोई और स्टेटमेंट है, दूसरे वाले के लिए कौन सा स्टेटमेंट है, ये वाला, इट इज़ डिसाइडेडली सो। क्या इसको कॉपी पेस्ट कर दें, ऑफ कोर्स, चलो कॉपी पेस्ट करते हैं, ओहो कॉपी किया, ला के हम लोगों ने क्या कर दिया भाई, पेस्ट कर दिया वहीं आए, ठीक है। उसके बाद हम लोग तीसरा वाला को भी कॉपी करके रख लेते हैं, ठीक है। केस, अच्छा सॉरी ये 1 हो गया ना, 1, ये हो जाएगा हम लोग का केस 2, ठीक है। एग्जीक्यूट होकर ब्रेक हो जाएगा, रिप्लाई हो गया, कैन नॉट प्रिडिक्ट नाउ वाला को भी कॉपी कर लो, उसको यहाँ पे पेस्ट कर दो, उसके बाद डू नॉट काउंट ऑन इट को भी कॉपी कर लो, उसको भी यहाँ पे पेस्ट कर लो, ओहो हो पेस्ट कर लो, उसके बाद नाइस सोर्सेज सेज नो को भी कॉपी कर लो, इसको भी यहाँ पे जाके पेस्ट कर, अब चाहो तो अपना भी कुछ लिख सकते हो, बट इतना दिमाग इतना छोटा प्रोजेक्ट के लिए हम इस्तेमाल कर लिए तो कहाँ जाएंगे ससुरा, यहाँ पे पेस्ट कर दो, साइंस पॉइंट 2 ईयर्स, इसको भी कॉपी कर लो, इसको भी जाके यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है किरी। हाँ तो हम लोग को लगता है हम लोग को जो स्टेटमेंट रन रेडी है, लेकिन आप लोग गलत हैं, 1 2 यहाँ पे 3 लिखोगे ना, छूट गया ना कुछ चीज़ें, केसेस को तो एडिट मार दो, रिफैक्टर करना केसेस को बाकी है, ठीक है, एडिट करना बाकी है, 4 के बाद 5 के बाद 6 के बाद लास्ट स्टेटमेंट को डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट 7, क्या रन हो जाएगा, अरे रन हो गया भाई, लेकिन नीचे का पार्ट को क्यों रन हो रहा है, इस पार्ट को डिलीट करना पड़ेगा ना, ठीक है, इसको डिलीट कर दिया, क्या हम लोग इसको रन कर दें, बिल्कुल, क्या हम लोग को बार बार अलग डू नॉट काउंट ऑन दिस आ रहा है, इट इज़ सर्टेन आ रहा है भाई, क्या सेम टू सेम आउटपुट दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है, क्या हम लोगों ने कमाल कर दिया, बिल्कुल हम लोगों ने कमाल कर दिया, ओह गॉड डैम इट, इट वाज अ रियली टायरिंग वन। अच्छा ब्रा, तो हम लोग नेक्स्ट टाइम क्या सीखने वाले हैं वो भी देख लेते हैं। रेस डे, ये क्या है भाई, कोड अकेडमीज एनुअल रेस इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, दिस ईयर यू हैव अ लॉट ऑफ पार्टिसिपेंट्स, you have been hired to write a program that will register the numbers of the runners of the race and give them an instruction on the race day. At a timeline, registration would look like this: adult registered only, adult registered late, adult all youth. Kind of looks confusing and complicated. Again a new project, bro. Alright, no problem, I'll do this in the next day. For now, I love you, टाटा, एंड या तुमको तो अपना नाम दिखाई नहीं ये वाला, तो ये मेरा आज का बैकग्राउंड, ऑलराइट, टाटा, सी यू।